Hello dear children, welcome back to the Acknowledge series by Amit Publishing House. I am Vandana and we are doing book 8. This is a computer book. Let's click a trendy way to learn computers. So children, today we are going to do chapter 3 and the name of the chapter is Working with Tables in MS Access 2019. In the previous chapter we have already learned what is MS Access. So in this chapter we are going to learn how can we work with tables in MS Access 2009. So in the previous chapter, we have discussed the basic concepts of the database and various objects in MS Access 2019 database. In this chapter, you will learn to work with tables. So components of table and view of a table, these two things that we are going to learn in this chapter. A table is a database object which is used to store information in an organized manner. So table क्या होता है? It is a database object. ये एक database object है जो use होता है for storing information in an organized manner. किसी भी information को organized manner में present करना, that is called a table. It consists of rows and columns. A database can have one or more tables. So इसमें जो है rows और columns होते हैं और इसमें जो है डेटाबेस के अंदर एक या उससे ज्यादा टेबल्स यूज होते हैं. फील्ड्स और एट्रीब्यूट्स वी आर गोइंग टू लर्न. सो हियर रोल नंबर इज गिवन, नेम एंड द एड्रेस ऑफ द चाइल्ड इज गिवन. नाउ this is the table that we have made in this database. Now components of a table, the important components of a table are, what are the components? Let's see. Fields and or attributes. So this is our first one. The columns in our table are known as fields and attributes. So जो भी column हम बनाते हैं table में, इसे field या फिर attribute के नाम से जानते हैं. A field is a part of record which consists of single piece of data. जो field होता है उसमें एक single piece होता है data का बस. A field stores one type of information about all the objects or items. Every field has a data type that determines the type of value that can be stored under. So जो भी field होता है, every field has a data type. हर field का एक data type होता है that determines the type of value. Value जो भी होता है उसको determine करता है. That can be stored under it. किस तरीके की value को store किया जा सकता है, इन सब चीजों को वो determine करता है. Next is data types are used to declare the fields of a table. So data type को use किया जाता है field को declare करने के लिए किसी भी table में. A data type determines the type of data in it. So data type determine करता है किस तरीके का data उसके अंदर है. Once the data type is defined, एक बार जब data type पता चल जाता है, we cannot enter a different type of data in it. So दूसरे तरीके का data उसके अंदर हम enter नहीं कर सकते. If we try to do so, an error message will be displayed. So अगर हमने ऐसा करने की कोशिश की तो क्या होगा, एक error message हमारे सामने आएगा जो कहेगा कि इसमें इस तरीके का डेटा हम नहीं डाल सकते. Next is field data types. So what is field data types? Let's see. The various data types available in Access are described in the table given below. So here is a table and we are going to read it. Here the data types are given and the description is given. Short text, it is used to store or a combination of text and numbers that does not require calculation. So ऐसे numbers को हम इसमें store कर सकते हैं, इसमें calculation की जरूरत नहीं होती है, such as addresses, phone number, etc. The field with this data type can have a maximum of 255 characters. So इस field में इतने characters हम डाल सकते हैं और शॉर्ट टेक्स्ट में ऐसे टेक्स्ट हम डालते हैं जिसमें कैलकुलेशन की जरूरत नहीं होती. नेक्स्ट कम्स द लॉन्ग टेक्स्ट. इट इज यूज्ड टू स्टोर लेंथी टेक्स्ट. बड़े टेक्स्ट को हम इसमें डाल सकते हैं. दैट इज अप टू 65,536 characters can be inserted in this and it can be used for storing detailed information such as the synopsis of a book or a patient's medical history. So long text में हम जो है टेक्स्ट में हम बड़ी चीजें डाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री भी डाल दी, पेशेंट
कब से बीमार था, क्या क्या चीजों को, क्या क्या मेडिसिन उसने ली और क्या क्या प्रॉब्लम्स को उसने फेस किया, क्या क्या रिकवरी हुई. सो एवरीथिंग कैन बी इंसर्टेड इन दिस लॉन्ग टेक्स्ट. नेक्स्ट कम्स द नंबर. इट इज यूज्ड फॉर न्यूमेरिक डेटा दैट कैन बी यूज्ड इन कैलकुलेशन. सो नंबर में वो डेटा होता है जिसको हम यूज कर सकते हैं फॉर कैलकुलेटिंग. नेक्स्ट कम्स द डेट एंड टाइम. इट स्टोर्स डेट एंड टाइम वैल्यू. यू कैन डिस्प्ले द डेट एंड टाइम इन वेरियस फॉर्मेट. सो इसमें हम डेट एंड टाइम को इंसर्ट कर सकते हैं अलग अलग फॉर्मेट में. नेक्स्ट कम्स द करेंसी. इट स्टोर्स करेंसी वैल्यू एंड देन डिस्प्लेज देम इन डिफरेंट फॉर्मेट. सो करेंसी वैल्यू इसमें हमें मिलेगी, डिफरेंट फॉर्मेट में हम उसे डिस्प्ले कर सकते हैं. ऑटो नंबर. इट स्टोर्स एन इंटीजर दैट इंक्रीमेट्स ऑटोमेटिकली एज यू ऐड रिकॉर्ड. सो जैसे ही हम जो है कोई नंबर इसमें डालते हैं, सो वो क्या करता है, उसको उस नंबर को स्टोर कर लेता है. नेक्स्ट इज yes no. This can have only one or two possible values such as yes or no, true false or no. So जब भी ये वाले डेटाबेस होता है तो उसमें क्या है, ऑप्शन दो ही होते हैं, या तो yes no या true false या फिर on और off. OLE. This stores graphics or objects such as Microsoft Excel worksheet और Microsoft Word document. So इसमें जो हम ग्राफिक्स या फिर ऑब्जेक्ट्स को स्टोर कर सकते हैं अंडर MS Excel और MS Word इन OLE. OLE में हम ये स्टोर कर सकते हैं. नेक्स्ट कम्स द हाइपरलिंक. द फील्ड विद दिस डेटा टाइप कैन स्टोर लिंक्स टू वेबसाइट और ईमेल एड्रेसेस. सो हाइपरलिंकिंग में हम क्या स्टोर करते हैं, वेबसाइट्स के लिए जो लिंक होती है वो और ईमेल एड्रेसेस को यहाँ पे स्टोर किया जाता है. नेक्स्ट कम्स द अटैचमेंट. दिस डेटा टाइप इज यूज्ड टू अटैच इमेजेस. सो इसमें हम इमेजेस को अटैच कर सकते हैं, स्प्रेडशीट को अटैच कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट, चार्ट एंड अदर टाइप ऑफ थिंग्स कैन बी अटैच्ड इन दिस. दे कैन बी मच सिमिलर टू द मैनर यू अटैच फाइल इन द ईमेल. सो जैसे हम ईमेल में अटैचमेंट में अटैच करते हैं, वैसे ही हम यहाँ पे भी अटैचमेंट में चीजों को अटैच कर सकते हैं. नेक्स्ट इज कैलकुलेटेड फील्ड्स विद दिस डेटा टाइप स्टोर रिजल्ट ऑफ अ कैलकुलेशन. सो कैलकुलेटेड में क्या होता है, इसमें जो डेटा होता है वो कैलकुलेशन के साथ स्टोर किया जाता है. द कैलकुलेशन मस्ट रिफर टू अदर फील्ड्स इन द सेम टेबल. कैलकुलेशन जो है उसी फील्ड के सेम टेबल से रिलेटेड होना चाहिए. Now lookup wizard. This creates a lookup field that displays a set of values. So ये क्या करता है, ये create करता है एक lookup field जिसमें जो है बहुत सारी values को display किया जाता है. It helps you to create a file whose values are chosen from the value in another table. So ये क्या करता है, ये हमें help करता है create करने के लिए एक ऐसा field जिसके values जो हैं किसी और table में से लिए गए हैं. क्वेरी और लिस्ट और वैल्यू, या किसी क्वेरी से लिए गए हैं, लिस्ट से लिए गए हैं. सो ऐसो को वो रिक्रिएट करने में हमारी हेल्प करता है. आफ्टर सेटिंग द डेटा टाइप फॉर अ फील्ड यू कैन सेट इट्स प्रॉपर्टीज. सो डेटा टाइप फॉर अ फील्ड के लिए डेटा टाइप को हम सेट करने के बाद वी कैन सेट इट प्रॉपर्टीज. अब हमने डेटा टाइप को सेट कर लिया, अब हम उसकी प्रॉपर्टीज को सेट कर लिया है. Let us learn more about field properties. क्या क्या field properties है? Let's see. Field properties. Every field in a table has its properties to define its characteristics and behavior. So जो भी field होता है एक table में, it has its properties. उसके अंदर एक उसकी properties होती हैं to define its characteristics and behavior. उसके characteristic और behavior को define करने के लिए. So every field, जो भी field होता है table में, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो डिफाइन करती है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर बिहेवियर की. द फील्ड प्रॉपर्टीज लेट्स यू हैव मोर कंट्रोल ऑन डेटा दैट कैन बी एंटर्ड इन अ पर्टिकुलर फील्ड. सो ये जो फील्ड प्रॉपर्टी है ये हेल्प करता है हमें टू हैव मोर कंट्रोल ऑन डेटा, डेटा पे ज्यादा कंट्रोल करने के लिए. दैट कैन बी एंटर इन पर्टिकुलर फील्ड, किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में उस डेटा को एंटर किया जा रहा है. सम ऑफ द फील्ड प्रॉपर्टीज आर एज फॉलोज. सो कुछ फील्ड प्रॉपर्टीज हम पढ़ने जा रहे हैं. लेट्स सी व्हाट आर दे. फर्स्ट कम्स द रिकॉर्ड. द रो इन द टेबल आर नोन एज रिकॉर्ड. तो जो भी रो होता है किसी भी टेबल में, जो हम एक्सेस में जो टेबल बनाते हैं
उसमें जो रोज होते हैं उन्हें हम रिकॉर्ड के नाम से जानते हैं. A record stores complete information about an object or an item. So record क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट या आइटम के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन को अपने पास स्टोर करके रखता है. Each record contains the complete information about a specific entity. Now, field properties are given here and their description is given. What are they? Let's see. First is field size. This property can be set for fields with text or number data type. So ये जो property है ये set किया जाता है उन fields के लिए जिसके अंदर text या फिर number data होता है. It sets the maximum size for data stored in the field to accommodate text 0 से लेके 255 numbers तक हम इसमें डाल सकते हैं. Auto number data type या फिर हम ऑटो नंबर डेटा टाइप भी इसमें इंसर्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट कम्स द फॉर्मेट. इट कंट्रोल्स द मैनर इन विच डेटा गेट्स डिस्प्लेड. सो फॉर्मेट क्या बताता है, ये कंट्रोल करता है डेटा को कैसे डिस्प्ले किया जाए. नेक्स्ट इज इनपुट मास्क. इट मेक्स डेटा एंट्री इजियर एंड कंट्रोल्स द वैल्यू विच अ यूजर कैन एंटर इनटू इट. सो इनपुट मास्क का क्या काम है, इट मेक्स डेटा एंट्री इजियर, डेटा एंट्री को इजियर करता है और कंट्रोल करता है सारी वैल्यूज को विच अ यूजर कैन एंटर इनटू इट, जो भी यूजर एंटर करता है अपने डेटा बेस में. नेक्स्ट कम्स द कैप्शन. दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू गिव एन ऑल्टरनेट मोर डिस्क्रिप्टिव नेम टू अ फील्ड. सो कैप्शन में क्या होता है, ये जो प्रॉपर्टी है ये यूज की जाती है टू गिव एन ऑल्टरनेट, किसी की जगह पे इसे यूज किया जाता है, मोर डिस्क्रिप्टिव नेम टू अ फील्ड, किसी भी फील्ड को एक डिस्क्रिप्टिव, ज्यादा डिस्क्रिप्टिव नेम देने के लिए कैप्शन यूज किया जाता है. डिफॉल्ट वैल्यू. दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू स्पेसिफाई अ वैल्यू दैट गेट्स डिस्प्लेड ऑटोमेटिकली व्हेन अ न्यू रिकॉर्ड इज क्रिएटेड. सो डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो स्पेसिफाई करता है एक वैल्यू दैट गेट डिस्प्लेड ऑटोमेटिकली व्हेन अ न्यू रिकॉर्ड इज क्रिएटेड. जैसे कि एक नया रिकॉर्ड क्रिएट किया था, ये ऑटोमेटिकली एक नए इट गेट्स डिस्प्लेड, ये ऑटोमेटिकली डिस्प्ले होने लगता है. वैलिडेशन रूल. इट इज यूज्ड टू पुट कंडीशन ऑन द डेटा दैट कैन बी एंटर्ड इनटू द फील्ड. सो वैलिडेशन रूल में क्या होता है, इट इज यूज्ड टू पुट कंडीशन, इसमें कंडीशन को डाला जाता है ऑन अ डेटा, डेटा के ऊपर विच कैन बी एंटर्ड इन द फील्ड, उस फील्ड में जो भी डेटा डाला जा रहा है उसके ऊपर हम इसमें कंडीशन डाल सकते हैं. वैलिडेशन टेक्स्ट. It is used to display an error message when the validation rule gets followed. So जो भी हमने validation rule डाला है, अगर मान लो उससे उसके अगेंस्ट हमने कोई भी वर्क किया है तो ये validation text क्या करता है, error message को प्रिंट करने लगता है, डिस्प्ले करने लगता है स्क्रीन पे. नेक्स्ट इज रिक्वायर्ड. इट enforces you to enter a value if required property is set for yes. So अगर required है, अगर रिक्वायर्ड लिखा हुआ है इसका मतलब आपको उस फील्ड को मैंडेटरी है फिल करना. आपने कभी कोई फॉर्म फिल किया होगा, उसमें आपने देखा होगा कि अगर रिक्वायर्ड लिखा हुआ है तो उसके आगे स्टार मार्क बना रहता है, इसका मतलब वो चीज आपको, वो इंफॉर्मेशन आपको फिल करनी ही करनी. नेक्स्ट कम्स द डेसिमल प्लेस. इट स्पेसिफाइज द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस फॉर न्यूमेरिक डेटा. सो कितने डेसिमल प्लेस हम यूज कर सकते हैं किसी भी न्यूमेरिक डेटा के लिए, ये स्पेसिफाई करता है. अलाउ जीरो लेंथ. इट एक्सेप्ट्स a blank entry if required property is set for yes. So ये एक्सेप्ट कर लेता है, ब्लैंक एंट्री को भी एक्सेप्ट कर लेता है इफ अगर जो है इसमें yes जो है सेट किया हुआ है तो. नेक्स्ट कम्स द प्राइमरी की. व्हाट इज प्राइमरी की, लेट्स सी. अ प्राइमरी की इज अ फील्ड और अ कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड्स. प्राइमरी की एक फील्ड है या फिर एक कॉम्बिनेशन है फील्ड्स का दैट यूनिकली आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड्स इन द टेबल. ये क्या करते हैं, जो भी रिकॉर्ड होता है टेबल में उसको आइडेंटिफाई करने का काम करते हैं. अ प्राइमरी की फील्ड कैन नॉट हैव रिपीटेटिव वैल्यूज एंड कैन नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक. एक प्राइमरी की फील्ड जो है कैन नॉट हैव रिपीटेटिव वैल्यूज, में बार बार एक ही वैल्यू को हम नहीं डाल सकते हैं और इसे ब्लैंक भी नहीं छोड़ा जा सकता है. व्यूज ऑफ अ टेबल. कौन कौन से व्यूज होते हैं टेबल में, लेट्स सी. यू कैन वर्क
ऑन अ टेबल इन 2 व्यूज, 2 व्यूज हैं जिसमें हम टेबल में वर्क कर सकते हैं. फर्स्ट इज द डिजाइन व्यू एंड द सेकेंड वन इज द डेटा शीट व्यू. Here is our design view and this is our data sheet view. These are the icons. In design view of a table, you can enter the field name. So इसमें हम field name डाल सकते हैं. Their data types and description. इनका data type और क्या क्या description है वो सब चीजें हम इसमें डाल सकते हैं. The design view window is divided into 2 parts. ये 2 parts में divided होता है. First है field grid pane and the second one is field properties pane. So let's see what is field grid pane. It is used for entering field name and their data types. So ये यूज होता है field के name को enter कर सकते हैं और उसका data type यूज कर सकते हैं इसमें. You can also give an optional description about each field in this pane. So उस field से related और कोई भी optional information इसके अंदर दे सकते हैं. Next is field properties pane. This section is used to set properties for the field in the table. So जो भी हमारे field की properties है वो हम यहाँ पे set कर सकते हैं. Next comes data sheet view. Data sheet view is used to enter data in a table. Table में data डालने के ही काम आता है ये भी. And when you double click the table name on the database window, it opens in the data sheet view. So जब भी हम double click करते हैं table name पे डेटा शीट डेटाबेस विंडो में तो क्या होता है डेटा शीट व्यू में वो ओपन हो जाता है. नेक्स्ट इज स्विचिंग बिटवीन व्यूज. व्यूज के बीच में हम कैसे स्विच कर सकते हैं. एक डिजाइन व्यू में है हम बट हमें डेटा शीट व्यू में जाना है तो हमें कैसे स्विच करना है, या डेटा शीट व्यू में है हमें डिजाइन व्यू में जाना है तो कैसे स्विच कर सकते हैं. Microsoft Access allows you to switch from one view to another by following either of the two methods. So, 2 methods हैं, इनमें से कोई भी एक method हम follow कर सकते हैं switch करने के लिए. Method 1 is click on the view option in the views group. So view group में हमें जाके views option पे click करना है. On the home tab to change the desired view. तो यहाँ से भी हम view को change कर सकते हैं. So here 2 views are given, we can change. Other method is क्लिक ऑन द डिजाइन व्यू. डिजाइन व्यू पे क्लिक करना है या फिर डेटा शीट व्यू जो भी व्यू खुला हुआ है एट द राइट कॉर्नर ऑफ द स्टेटस बार. स्टेटस बार के राइट कॉर्नर में ये दोनों व्यू हैं. जिस पे भी क्लिक करेंगे उस व्यू में हमारा टेबल हमें शो होने लगेगा. चिल्ड्रन, इन दिस चैप्टर यू विल लर्न हाउ टू क्रिएट अ टेबल इन द डिजाइन व्यू. दिस लेट्स यू डिजाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल बाय स्पेसिफाइंग द फील्ड नेम, डेटा टाइप एंड देयर प्रॉपर्टीज. सो डिजाइन व्यू हम पढ़ेंगे इसमें और इसमें हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे. कैसे स्ट्रक्चर टेबल का चेंज कर सकते हैं, उनका फील्ड नेम, डेटा का टाइप और उनकी प्रॉपर्टीज. टू क्रिएट द टेबल इन डिजाइन व्यू फॉलो दीज स्टेप्स. क्लिक ऑन द क्रिएट टैब. सेलेक्ट द टेबल डिजाइन ऑप्शन इन टेबल्स ग्रुप. एंटर द नेम फॉर द फील्ड इन द फील्ड नेम कॉलम. तो पहले क्रिएट पे जाना है, फिर टेबल डिजाइन पे जाना है टेबल्स ग्रुप में, फिर फील्ड नेम में हमें जाके फील्ड नेम एंटर करना है, फिर सेलेक्ट करना है डेटा टाइप इन द डेटा टाइप लिस्ट एंड यूज द फील्ड्स प्रॉपर्टी. फील्ड प्रॉपर्टी को यूज करना है टू सेट द प्रॉपर्टी फॉर द फील्ड. जो भी प्रॉपर्टी है वो हमें सेट करनी है उस पर्टिकुलर फील्ड के लिए. एंड प्लेस द कर्सर ऑन द फील्ड टू बी सेट एज अ प्राइमरी की. Click on the primary key option on the tools group. So primary key option पे हमें click करना है tools group पे in the design tab under table tool. So table tool में design tab के अंदर जाके हमें primary key option को choose करना है. You will notice that the key symbol appears on the field. So जैसे हम ये करेंगे तो एक key symbol आ जाएगा field में. Type the name of the table in the table name. तो जो भी हमारा टेबल है उसमें टेबल नेम में हमें टेबल का एक नाम लिखना है. नाउ क्लिक ऑन द सेव बटन ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार. हमें क्लिक करना है सेव बटन पे क्विक एक्सेस टूल बार पे और क्लिक ऑन द फाइल टैब एंड सेलेक्ट द सेव ऑप्शन. फाइल टैब पे क्लिक करना है और वहां से सेव ऑप्शन पे जाना है. अ सेव एज डायलॉग बॉक्स विल अपीयर. सेव एज डायलॉग बॉक्स आ जाएगा हमारे सामने और वहां जाके हमें क्लिक करना है OK button. So the table is now added to the navigation pane.
सो इतना ये सारे स्टेप्स को जब हमने फॉलो कर लिया, सो वी कैन सी द टेबल इज इंसर्टेड इन आवर नेविगेशन पेन। तो रिमूव अ प्राइमरी की को रिमूव करने के लिए क्लिक ऑन द प्राइमरी की फील्ड इन द डिजाइन व्यू। डिजाइन व्यू में हमें प्राइमरी की फील्ड पे हमें क्लिक करना है एंड क्लिक ऑन द प्राइमरी की ऑप्शन ऑन द टूल्स ग्रुप इन द डिजाइन टैब, और डिजाइन टैब में जाके टूल्स ग्रुप में हमें प्राइमरी की ऑप्शन को क्लिक करना है। नाउ एंटरिंग डेटा इनटू अ टेबल। हाउ कैन वी एंटर डेटा इनटू अ टेबल? After finalizing the structure of a design in design view में अब हमने स्ट्रक्चर को फाइनलाइज कर लिया है। You can add records to it in the data sheet view। हम उसमें जो है रिकॉर्ड्स को अब ऐड कर सकते हैं। अब हमने एंटर कर लिया, अब हम उसमें डेटा में हम रिकॉर्ड को ऐड कर रहे हैं। To enter data in the table, follow these steps। First we have to open the table in the data sheet view। data sheet view में हमें जो है टेबल को ओपन करना है by double clicking on the table in the navigation tool। so डबल क्लिक करके भी हम इसको ओपन कर सकते हैं, एंड जो हमने पढ़ा था कि राइट साइड में भी जाके हम उसमें स्विच ऑन कर सकते हैं। apart from fields you will also find a blank row with the asterisk symbol। so this symbol we can see, type the data in the appropriate field and press either the enter or the tab key to move to the next field। सो अगले फील्ड में जाने के लिए हमें या तो एंटर की को प्रेस करना है या फिर टैब की को प्रेस करना है, एंड बाय दिस वी कैन एंटर द डेटा। नाउ व्हेन द डेटा इज एंटर्ड इन अ रो, जब डेटा को एक एंटर कर दिया गया है एक रो में, अ न्यू ब्लैंक रो विल अपीयर। एक नया ब्लैंक रो आएगा, अपने आप ही ऑटोमेटिकली आ जाएगा हमारे सामने। यू कैन इंसर्ट एनी नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन अ टेबल। तो जितने भी रिकॉर्ड्स हमें इंसर्ट करने वो सब कुछ हम इसमें एंटर कर सकते हैं। Now what factbook says? Press the shift plus tab key to move to the previous field। If you press the tab key on the last field, the cursor automatically jumps to the next field। So हमें क्या करना है? shift के साथ tab key को press करना है to move to the previous field। previous field पे जाने के लिए, ऊपर वाली field पे जाने के लिए if you press the tab key on the last field, the cursor automatically jumps to the next field। अगर हमने सिर्फ tab key को press किया तो वो next row में चला जाएगा हमारा cursor। You can view the recorded number at the bottom of the screen in the record navigation bar। So record navigation bar में भी हम देख सकते हैं कितने जो है रिकॉर्ड्स हमने डाले हैं। Adding record in a table। टेबल में हम रिकॉर्ड्स को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं? यहाँ पे आप देख सकते हो 1 of 3 लिखा है, means 3 records are there and we are seeing the first one। To add a new record, you can add a new record to a table in 3 ways। 3 तरीके हैं जिससे हम टेबल में रिकॉर्ड कर सकते हैं। द फर्स्ट मेथड इज सेलेक्ट द न्यू बटन इन द रिकॉर्ड्स ग्रुप ऑन द होम टैब। सो पहले हमें रिकॉर्ड्स ग्रुप में जाना है होम टैब में, वहां पे जाके हमें न्यू बटन पे क्लिक करना है। क्लिक ऑन द न्यू ब्लैंक रिकॉर्ड, नए ब्लैंक रिकॉर्ड पे क्लिक करना है एंड जस्ट ऑन द रिकॉर्ड नेविगेशन बार। रिकॉर्ड नेविगेशन बार पे जो ये रिकॉर्ड बटन है उस पर हमें क्लिक करना है एंड simply start typing the row below the last added record। so हमें क्या करना है? सीधे टाइप कर देना है लास्ट एडेड रिकॉर्ड के पास, हमें वहां पे टाइप कर देना है। नाउ टू सेव अ रिकॉर्ड, अब हमने सेव रिकॉर्ड को बनाना सीख लिया है। हाउ कैन वी सेव अ रिकॉर्ड? सो क्लिक ऑन द सेव बटन इन द रिकॉर्ड्स ग्रुप इन द होम टैब। सो होम टैब पे जाना है और वहां पे हमें रिकॉर्ड्स ग्रुप में जाके सेव बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे हमने क्लिक किया, so what will happen? The file will be saved। next is editing records in a table। how can we edit records in a table? after entering data in a table, data को जब हमने enter कर दिया टेबल में, sometimes it is required to make changes in the database। कई बार ऐसा होता है कि हमें चेंज करना पड़ जाता है डेटाबेस में। to edit records in a table, follow these steps। so कुछ steps दिए हैं, उन्हें हमें follow करना है। Use the record navigation button to find the records, to find or to edit or double click the cell where you want to make change। या तो हमें क्या करना है? रिकॉर्ड नेविगेशन बटन को ओपन करना है, यूज करना है रिकॉर्ड को फाइंड करने के लिए टू एडिट, या फिर हमें डबल क्लिक करना है उस सेल पे जहाँ पे हमें चेंजेस करने हैं। टाइप द इंफॉर्मेशन इनटू द फील्ड। जो भी इंफॉर्मेशन है हमें उस फील्ड में टाइप करनी है, उस एरिया में टाइप करना है। A pencil icon appears to indicate the edit mode।
सो पेंसिल एक आइकन आ जाएगा उसमें जिसमें पेंसिल बना होगा, जिसका मतलब कि नाउ वी कैन एडिट एंड क्लिक आउटसाइड द रिकॉर्ड टू अप्लाई द चेंजेस। और रिकॉर्ड से बाहर हमें क्लिक करना है जिससे कि जो भी चेंजेस हमने किए वो उसमें अप्लाई हो सके। Next is deleting records in a table. How can we delete records in a table? Delete a record, open the table in a data sheet view and follow these steps. So कुछ steps है वो हमें follow करने हैं to delete a record. Now click on the record that needs to be deleted. जो भी record है उसको delete करने के लिए what we have to do? We have to click on that record. Now click on the delete option in the records group in the home tab. तो होम टैब में जाके रिकॉर्ड्स ग्रुप में से हमें डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करना है। द सिलेक्टेड रो विल बी डिलीटेड। जो भी रो हमने सिलेक्ट कर रखा था वो हमारी डिलीट हो जाएगी। नेक्स्ट इज सॉर्टिंग रिकॉर्ड्स इन अ टेबल। हाउ कैन वी सॉर्ट रिकॉर्ड्स इन अ टेबल? रिकॉर्ड्स को कैसे हम सॉर्ट कर सकते हैं? सॉर्टिंग आपने पहले भी पढ़ रखा है। सॉर्टिंग मीन्स कि आपको चूज करना है। सो हाउ कैन वी डू दैट? ओपन द टेबल इन डेटा शीट व्यू एंड फॉलो दीज स्टेप्स। So कुछ steps दिए हैं, we have to follow that. First is select the field on the basis of which you want to sort the record. So उस field को select करो जिसके basis पे हमें जो है record को sort करना है. Click on the ascending or descending option in the sort and filter group in the home tabs. The record gets sorted. So A to Z कर सकते हैं इसे या Z to ए रिकॉर्ड को हम जो है सॉर्ट कर सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में रिकॉर्ड को हम सॉर्ट कर सकते हैं या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हैं बाय गोइंग इन द सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप इन द होम टैब। सो आफ्टर डूइंग दिस द रिकॉर्ड विल बी सॉर्टेड। सर्चिंग रिकॉर्ड्स इन अ टेबल। हाउ कैन वी सर्च रिकॉर्ड्स इन अ टेबल? टू सर्च फॉर डेटा क्विकली फॉलो दीज स्टेप्स। सम स्टेप्स आर गिवन। व्हाट आर द स्टेप्स? Enter a part of all the words, phrases, data and numbers in the search box at the bottom of the MS Access screen. So हमें enter करना है वो part या फिर सारे words या phrase या date या number किसमें search box में हमें enter करना है। At the bottom of the MS Access screen. MS Access screen के bottom में सबसे नीचे एक search box है वहाँ हमें ये enter करना है। MS Access highlights the corresponding character in the first record that matches your search. So जिससे भी वो मैच कर रहा है, जो भी हमने टाइप किया वो मैच कर रहा है, उसको MS Access जो है हाईलाइट कर देगा। To find the next matching record, press the enter key. और next record find करना है आपको, तो enter key को हमें प्रेस करना है फिर से। तो क्या है? फिर से वो नया रिकॉर्ड जो है वो निकालेगा। MS Access finds all records that match your search data. So MS Access क्या करता है? फाइंड करता है, ढूंढता है जितने भी रिकॉर्ड हैं हमारे उस डेटाबेस में टू मैच आ डेटा एनीवेयर इन योर डेटा शीट। डेटा शीट में वो कहीं भी उन सबको वो ढूंढ के एक जगह हमें दिखाता है कि यहाँ पे ये वर्ड है जो आप सर्च कर रहे हैं। मॉडिफाइंग द टेबल डिजाइन। हाउ कैन वी मॉडिफाई द टेबल डिजाइन? यू कैन मेक चेंजेस टू द डिजाइन ऑफ द टेबल आफ्टर इट हैज बीन क्रिएटेड। सो जो भी डिजाइन हम बना रहे हैं उसमें हम चेंज कर सकते हैं। जब हमने बना लिया उसके बाद हम उसके अंदर चेंज कर सकते हैं। इंसर्टिंग अ न्यू फील्ड। हाउ कैन वी इंसर्ट अ न्यू फील्ड? टू इंसर्ट अ न्यू फील्ड ओपन द टेबल इन डिजाइन व्यू। तो डिजाइन व्यू में जाके हमें जो है इंसर्ट करनी है न्यू फील्ड को एंड फॉलो दी स्टेप्स को फॉलो करना है। प्लेस द कर्सर ऑन द फील्ड बिफोर यू वांट टू इंसर्ट अ न्यू फील्ड। सो कर्सर को प्लेस करना है उस फील्ड में जहाँ पे हमें जो है इंसर्ट करना है एक नया फील्ड। सो आई वांट टू इंसर्ट इट हियर। नेक्स्ट क्लिक ऑन द इंसर्ट रो ऑप्शन इन द टूल्स ग्रुप। टूल्स ग्रुप में जाके हमें इंसर्ट रो ऑप्शन पे क्लिक करना है ऑन द डिजाइन टैब अंदर द टेबल टूल। टेबल टूल्स के अंदर डिजाइन टैब के अंदर हमें जाके उसे इंसर्ट रो पे क्लिक करना है। अ न्यू रो इज इंसर्टेड। अब एक नया रो इंसर्ट हो जाएगा। वी कैन सी हियर। एंटर द फाइल नेम, टाइप डेटा एंड प्रॉपर्टीज फॉर द न्यू फाइल। सब हमें फाइल नेम और उसका जो पर्टिकुलर डेटा टाइप है या प्रॉपर्टीज है वो सारी चीजें हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। नाउ डिलीटिंग अ फाइल। हाउ कैन वी डिलीट अ फाइल? टू डिलीट अ फाइल ओपन द टेबल इन डिजाइन व्यू। सो पहले हमें टेबल को डिजाइन व्यू में ओपन करना, उसके बाद हम उसे डिलीट कर सकते हैं। प्लेस द कर्सर ऑन द फील्ड यू वांट टू। जिस
बी पार्ट को हमें डिलीट करना है, वहां पे हम अपना कर्सर लेके जाएंगे, क्लिक ऑन द डिलीट रो ऑप्शन, डिलीट रो ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इन द टूल्स ग्रुप इन द डिजाइन टैब अंडर टेबल टूल, MS Access displays a warning box confirming whether you want to delete the field permanently. So MS Access जैसे हमने क्लिक किया तो एक मैसेज आएगा हमारे सामने जिसमें MS Access हमसे ये पूछ रहा है कि डू यू वांट टू डिलीट द फाइल परमानेंटली, क्या इसे आप परमानेंटली डिलीट करना चाहते हो? नाउ वी हैव टू क्लिक ऑन द यस बटन, जैसे हमने यस बटन पे क्लिक किया द फाइल इज डिलीटेड फ्रॉम द टेबल, ये फाइल जो है टेबल में से डिलीट हो जाएगी. नाउ लेट्स कम टू द रिकॉल टाइम चिल्ड्रन. A table is a database object which is used to store information in an organized manner. A table consists of rows and columns. A field stores one type of information about all objects or items. Data types are used to declare the fields of a table. A data type determines the type of data in it. Once the data type is determined, we cannot enter a different type of data in it. If we try to do so, an error message will be displayed. A data type available, the data types available in MS Access 2019 are short text, long text, number, date, time, currency, auto number, yes, yes, no, only object, hyperlink, attachment, calculated and lookup results. Every field in a table has its own property to define its characteristics and behavior. The field properties like you have more control on data that can be entered in a particular field. A record stores complete information about the object or an item. Each record contains the complete information about a specific entity. So this is all what we have learned in this chapter. Now let's quickly come to the book exercise, children. I'll be doing 2 questions of each exercise and rest you have to do on your own. So first question is, which of the following data type lets you store an integer that is incremented automatically as you add records? So which we use? We use auto numbers here. Next is find the odd term out. What is odd in these? Date, time, field size, required or allowed, zero length. So your date time is the odd term out. Rest questions you have to do on your own, children. Next is fill in the blanks. Dash view is used to enter data in a table. So which view is used to enter data into the table? Data sheet view is used. Next is in dash view of the table, you can enter the field name, their data types and the description. So here design view is used to enter the field name, their data types and the descriptions. Rest 3 you have to do on your own. Now let's come to the true and false. A database can have only one table. No, this is false. And number data type is used for numeric data that will be used in calculation. So children, this is true and the rest 3 you have to do on your own. Now let's quickly come to the question and answers. What do you understand by the term table, and name some important components of a table? So a table is a database object that is used to arrange and properly keep the content database into a proper manner. And some important components of the table are field attributes and field data types. So these are a few. There are many more. You have to find it out. And children, the rest questions you have to do on your own. So let's come to the next page. So children, this was all for today in this chapter. I hope that you understood the chapter. You have to follow the given instructions, follow the given commands here in this chapter, and you have to do a practical of this chapter in your computer system. Then only you will easily understand what I have taught you. So you have to complete the given exercises in your book, and I'll be waiting for you with a new chapter. Until then, you have to stay later for the new video.